students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, which is very interesting also, shapes and patterns. In this chapter, we will learn about plane and solid figures, patterns, playing with patterns and tessellation. Startup में देखिए, ये just revision है. You have to name the following shapes जो आप आराम से कर सकते हैं. Okay, so do it yourself. Plane figures and solid figures. We have learnt about the plane and solid figures in the previous classes. Previous classes में भी आपने पढ़ा था ना plane figures के बारे में and solid figures के बारे में. A plane figure is a two-dimensional figure having only length and breadth. It has no thickness. So जो plane figure को हम 2D figures भी कहते हैं क्योंकि उनके दो dimensions होते हैं length and breadth. A few common plane figures are given below. Rectangle, triangle, square and circle. ये 2D shapes हैं आपकी, okay? A solid figure is a three-dimensional figure having length, width and height. It has thickness. So solid figures आपकी three-dimensional figure होती है जिसमें length, breadth और के साथ-साथ होती है height. So some common solid figures are cube, cuboid, cone, sphere, cylinder. We can find these shapes in objects of use in our daily life. For example, a pencil box is a cuboid. पेंसिल बॉक्स का शेप आपका क्यूबॉइड होता है. डाइस जिससे आप खेलते हैं इज अ क्यूब. अ बॉल इज अ स्फेयर एटसेट्रा. ओके, सो ये कहने का मतलब ये सारे जो शेप्स हैं ये आपको अपनी डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हैं ना वहाँ पे मिल जाएंगे. फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस. The flat surface of a solid shape are called faces. किसी भी solid shape का जो flat surface होता है face होता है. For example, this one. Okay, the joining of faces is called edge. जहाँ पे आपके joining हो रही है faces की वो आपका edge है and जो corners हैं the corners are called vertices. The table below shows the number of faces, flat surface, curved surface, vertex and edges of some solid shapes. चलिए टेबल में देखते हैं. सबसे पहले आपके पास क्यूबॉइड है, फ्लैट सरफेस है 6, कर्व्ड सरफेस है 0, वर्टेक्स है 8 एंड एजेस हैं 12. क्यूब की बात करते हैं. फ्लैट सरफेस यानी फेसेस. फ्लैट सरफेस आपके बच्चों हैं फेसेस. ओके, 6 faces, 0 curved surface, 8 vertex and 12 edges. सिलेंडर की बात करें, फ्लैट सरफेस है आपके 2, कर्व्ड सरफेस 1, वर्टेक्स 0, एजेस 2. स्फीयर की फ्लैट सरफेस है 0, कर्व्ड सरफेस 1, वर्टेक्स 0 एंड एजेस भी 0. कोन की बात करें, सो फ्लैट सरफेस 1, कर्व्ड सरफेस 1, वर्टेक्स 1 एंड एजेस 1. ओके, नेट्स. The net of a three-dimensional shape is something that looks like a 3D shape when opened out flat. A net can be folded up to make a 3D shape. You can draw a net on paper and then fold it into different shape. The net of some 3D figures are shown below. देखिए जो net होता है 3D shape का वो आपका लगता है 3D shape जैसा जब उसको आप open करेंगे flat. ओके, तो नेट को आप फोल्ड करके 3D शेप्स बना सकते हैं. जैसे आपको कुछ नेट दिए गए हैं, जैसे देखिए ये क्यूब का नेट है क्योंकि इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब की शेप बनेगा. ये क्यूबॉइड का नेट है, ये कोन का नेट है एंड ये सिलेंडर का नेट है. ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज 11.1. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ए, अ सिलेंडर हैज डैश फ्लैट सर्फेसेस. सिलेंडर के कितने फ्लैट सर्फेसेस होते हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, राइट, 2. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे. ओके, पैटर्न्स. Pattern is a repeated arrangement of shapes, colors, numbers, etc. We observe pattern in sarees, carpets, beds, buildings, etc. So pattern actually क्या होता है? Repeated arrangement होता है shapes का, colors का या numbers का. So pattern आपको देखने मिलेगा sarees में, carpets में, beds में, buildings में. Okay? So look at the picture given below and observe the pattern. देखिए ये भी कुछ आपको example दिए गए हैं pattern के, right? Number patterns. If a set of numbers are related to each other in a specific rule or manner, it is termed as number pattern or sequence. For example, 8, 16, 24, 32, 40. In this pattern, the numbers are related as multiples of 8. So, जब set of numbers एक दूसरे के साथ related है किसी specific rule या manner में तो उसे हम number pattern या sequence कहते हैं. जैसे कि अगर हम इसकी बात करें इस pattern की तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं? ये multiples हैं 8 के. Okay? Example देखते हैं. What would be next in the pattern? A1, B2, C3. अच्छा देखिए आपके अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और आपके नंबर्स भी. ओके, सो A, B, C अब आपका आएगा D और नंबर्स 1, 2, 3, 4. ओके, द आंसर इज D and 4 because the pattern alternatively increases the letter in the number. So we can have patterns with the shapes, numbers, letter, etc. पैटर्न आपके shapes, number, letters इन सब के साथ हो सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीरीज। 64, 56, 48 और 40 ये डिक्रीज हो रहे हैं, और ध्यान से देखेंगे ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, राइट। सो अब देखिए 64, 56, 48, 40, अब आपका आ जाएगा 32 एंड 24। ओके, नाउ यूजिंग पैटर्न्स टू मेक कोड। अच्छा, आप पता है पैटर्न्स की हेल्प से आप कोड भी बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। While writing secret messages, coding is used so that anyone else looking at the message cannot read the message unless he or she knows the code. A simple code is to represent each letter of the alphabet by a number. जब आप कोई सीक्रेट मैसेजेस लिखते हैं तो कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो सीक्रेट मैसेज है कोई और उसको रीड ना कर सके, अगर उसे कोड नहीं पता है तो सिंपल कोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के साथ, अल्फ़ाबेट के लेटर के साथ बाय नंबर। जैसे देखिए A to Z आपको लेटर्स दिए गए अल्फ़ाबेट्स और उनकी नंबरिंग की गई है 1 से लेके 26 तक। ओके, तो चलिए वी यूज़ कोड टू रीड द मैसेज फॉलोइंग मैसेज। अब ये मैसेज है, हमें इससे क्या करना है, कोड का इस्तेमाल करना है। ओके, 19 नंबर पे देखिए कौन सा लेटर है, S, 1 पे है A, 22 पे है V और 5 पे है E, सेव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 20 पे है T, 8 पे है बच्चों H और 5 पे है E, सेव द। आगे देखते हैं, 5 पे है देखिए बच्चों E, 14 पे देखिए N, 22 पे V, 9 पे I, 18 पे R, 15 पे देखेंगे बच्चों, 15 पे आपका O, 14 पे N, फिर 13 पे आपका बच्चों M, 5 पे E, 14 पे N और 20 पे T। सो मैसेज क्या कह रहा है, सेव द एनवायरनमेंट। अच्छा, कितना अच्छा तरीका है ना ये मैसेज भेजने का। ओके, नाउ टेसलेशन। Tessellation is a pattern made by repeating shapes design that covers a surface completely without any gaps or overlapping. People use tessellations to decorate walls and floors and even works of art. अच्छा, टेसलेशन एक पैटर्न है जो आपका बनाया जाता है शेप्स डिज़ाइन को रिपीट करके, जो एक सरफेस को कवर करते हैं कम्प्लीटली बिना किसी गैप या ओवरलैपिंग की। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ओके, सो टेसलेशन का इस्तेमाल करते हैं जैसे वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए, फ्लोर्स को डेकोरेट करने के लिए। ओके, द अबव फिगर्स शो टेसलेशन। नाउ लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। The above figures do not show tessellation as the shapes have gaps between them. अच्छा, ये tessellation शो नहीं कर रही है जो फिगर्स हैं आपकी, क्योंकि इनके बीच में गैप्स हैं इन शेप्स के बीच में। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 11.2। कंप्लीट द टेसलेशन बाय कलरिंग। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क आपको दिया गया है स्टूडेंट्स। कलरिंग का हेल्प से आपने टेसलेशन को कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैटर्न। 34 P, 35 Q। अब देखिए नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, 36, 37, 38 और देन 39। ओके, एंड साथ में आपके अल्फ़ाबेट्स भी चल रहे हैं, P, Q, R, S, T आपका आ गया U, है ना, कितना सिंपल। तो देखा आपने कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था। इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।